So we have started with the rectification of errors. Yes, good morning everyone. So in the previous class we had discussed types of errors. Any doubt in types of errors? No, sir. Okay. Now, we discussed in the previous class various types of errors, and we discussed that Yes. okay, we had discussed in the previous class that uh, how to rectify the errors. Errors which do not affect the trial balance should be rectified through rectifying journal entries. How to make those entries we will learn a bit later. Then errors affecting trial balance means which are one-sided errors. If ledger accounts have not been closed, we will rectify those errors directly in the ledger accounts. But if ledger accounts have been closed, then we will rectify those errors also through passing rectifying journal entries using a suspense account, which is for the time being a suspense for us. Then we discuss that if the words given in the question are recorded or entered, generally it means a two-sided error. Whereas the words posted, debited or credited mean there is some error in ledger posting. That means it is a one-sided error. Okay. Now, then we discussed to understand an error first. What we need to do is first of all, we have to visualize where exactly the transaction should have been recorded and how, in which book of original entry. Then, where and how its posting should have been made, in which ledger accounts. Then we have to understand, as per the wording of the question, where the recording has actually been done and where and how the posting has been done. Yahan tak clear? Yes, sir. Is it clear up to here? Yes, sir. Okay. Now, what logic do I have to apply in rectification of errors? Let us understand that now. Suppose you had to give rupees 100 to someone, but by mistake you gave him only 80 rupees. How will you rectify this mistake now? So by giving 20 rupees more to that person. 20 rupees more. So similarly, if an account has been debited less, debit it more with the difference. If an account has been credited less, credit it more with the difference. Clear yahan tak? Yes, sir. Similarly, now tell me, if you had to give someone rupees 100, by mistake you gave 120. How will you rectify this mistake? So by taking rupees 20 back. Take back rupees 20 now. Absolutely. So similarly, if an account has been debited more, तो वापस लेने का क्या तरीका है? हम माइनस नहीं कर सकते अमाउंट कॉलम में, हम उसकी ऑपोजिट साइड पे डिफरेंस का अमाउंट डाल देंगे. हाँ, if an account has been debited more, then credited with the difference. 100 की जगह 120 से डेबिट कर दिया है तो 20 रुपए क्रेडिट कर दो, ताकि जब बैलेंसिंग होगी तो वो 100 माइनस 20 होके 120 माइनस 20 होके 100 का इफेक्ट आ जाएगा. Similarly, if an account has been credited more, then what to do? So debit it. Debit it with the difference. एक अकाउंट को हमने 100 की जगह 120 क्रेडिट कर दिया है, तो अब 20 रुपीज डेबिट कर दो, ताकि जब उसकी बैलेंसिंग होगी 120 माइनस 20 100 का नेट इफेक्ट आ जाएगा क्रेडिट में. क्लियर? सर ये ऐसे ही है ना जैसे हम जीएसटी सेट ऑफ करते हैं.
कुछ एक्सटेंट तक यस, बट नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, उससे मत लिंक करो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, इसको सेपरेट रखो। ओके Yes. चलो अब आते हैं हमने 3 कैटेगरीज डिस्कस की। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, मतलब वन साइडेड एरर्स बिफोर द लेजर अकाउंट्स हैव बीन क्लोज। मतलब लेजर अकाउंट अभी क्लोज नहीं हुए, लेकिन हमें किसी किसी लेजर में कुछ मिस्टेक मिल गई, तो क्लोज नहीं हुए हैं तो अभी हम लेजर में ही रेक्टिफाई कर सकते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज सेल्स बुक अंडरकास्ट, अंडरकास्ट मतलब So there is shortage in totaling. yes, totaling has been done less, अंडरकास्ट बाय ₹500। अब इसका इफेक्ट कौन से लेजर अकाउंट पे जाएगा? The sales account. सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट या क्रेडिट? Credit. Credit. This means sales account credit side is less by 500, isn't it? Yes or no? Yes. हाँ, तो हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे? इन सेल्स अकाउंट, सेल्स के लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम पर्टिकुलर्स में लिख देंगे बाय सेल्स बुक अंडर कास्ट। क्या लिखेंगे? By sales. ताकि उसे पढ़ के पता चल जाए कि ये पोस्टिंग क्यों आई है, एरर हो गया था, उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है। और अमाउंट कॉलम में हम 500 रुपीज लिख देंगे। इससे अब सेल्स अकाउंट का बैलेंस ठीक हो जाएगा। इज इट क्लियर? Excuse me, sir. हाँ जी। सर लेकिन आपने बोला था कि इससे रिलायबिलिटी पे फर्क पड़ता है अगर हम इरेज करते हैं या ओवरराइट करते हैं। तो सर अगर हम ये भी लिखेंगे स्टेटमेंट तो भी पता तो चल ही जाएगा चेक करने वाले को कि यस वी हैव मेड अ मिस्टेक। हाँ, तो हमने छुपाना नहीं है कि मिस्टेक हो गई। देखो, दो चीजें हैं। एक होता है आपसे मिस्टेक हो गई, आप उसे कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो। जब कवर अप करने की कोशिश करते हैं तो लोगों को डाउट होता है। सपोज किसी से कुछ मिस्टेक हो गई और उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करने के बजाय उसने कवर अप करने के लिए कुछ झूठ बोल दिया। ठीक है, तो वो झूठ से सुनने वाले को डाउट हो गया, फिर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करता गया, तो कहीं ना कहीं वो झूठ पकड़ा जाता है। और डाउट रहता है, अगर नहीं भी पकड़ा गया तो भी सामने वाले के मन में डाउट रहता है। लेकिन अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई और आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मुझसे ये मिस्टेक हो गई एंड नाउ आई एम करेक्टिंग इट इन दिस मैनर, आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर इट एंड आई एम विलिंग टू रेक्टिफाई इट। ठीक है, तो तब आपकी रिस्पेक्ट बल्कि बढ़ जाती है सामने वाले के नजरों में, दैट यस दिस पर्सन एक्सेप्ट्स द मिस्टेक्स एंड इज रेडी टू करेक्ट देम, इज रेडी टू इंप्रूव अपॉन। ठीक है, तो जब हम रेक्टिफिकेशन इस तरह से करते हैं तो हम सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं। मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। हमने कहा था कटिंग नहीं करनी, ओवर राइटिंग नहीं करनी, वो हम यहाँ पर नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि कटिंग ओवर राइटिंग होगी तो देखने वाले को डाउट होगा कि पता नहीं इन्होंने क्या मैनिपुलेशंस कर रखी हैं। लेकिन जब इस तरह से लिखा होगा बाय सेल्स बुक अंडरकास्ट, तो पढ़ने वाले को क्लियरली पता चलेगा अच्छा ये मिस्टेक हो गई थी टोटलिंग में, उसे रेक्टिफाई किया गया है, तो कोई डाउट फिर नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि रेक्टिफाई तो करना ही है, किस तरह से करना है, बस गलत तरीके से नहीं करना, उसे ओवर राइटिंग करके या कट करके या इरेज करके नहीं करना, सही तरीके से करना है जिससे कि देखने वालों को पता चल जाए कि हाँ ये मिस्टेक हुई थी और ये उसकी रेक्टिफिकेशन हुई है। रेक्टिफाई तो करना ही है, मिस्टेक छोड़नी नहीं है बुक्स में। ठीक है, एंड दिस अप्लाइज इन आवर जनरल लाइफ ऑल्सो, डे टू डे लाइफ ऑल्सो। हमसे कई बार कई मिस्टेक्स हो जाती हैं लाइफ में, तो कई लोग क्या करते हैं, उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उससे क्या है, वो एक विशियस सर्कल ऑफ लाइज में फंसते चले जाते हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी कम होती जाती है सबकी नजरों में। क्या करना चाहिए, कोई मिस्टेक हो गई, नो प्रॉब्लम, जैसे ही आपको रियलाइज हुआ कि मिस्टेक हो गई है, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मुझसे ये मिस्टेक हो गई, और
जो भी उसकी रेक्टिफिकेशन करेक्शन हो सकती है वो कर लो। अगर किसी को कुछ चोट लगी या कुछ हर्ट हुई फीलिंग्स किसी की आपकी मिस्टेक से, उन्हें अपोलोजाइज कर दो एंड डू वट एवर रेक्टिफिकेशन यू कैन डू। इससे क्या होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, आपकी रिलेशनशिप्स भी बेटर होंगी। ठीक है। जी सर। सेकंड एग्जांपल, परचेजेस बुक ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब टोटल्ड मोर। टोटल्ड मोर बाय ₹500। कहां पे जाता है परचेज बुक का टोटल? द परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट में। ठीक है। विच साइड? डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड परचेज अकाउंट में ज्यादा हो गई है 500 से, अब कैसे रेक्टिफाई करोगे? फिर उसको क्रेडिट कर देंगे हम 500 को। वेरी गुड, वेरी गुड। सो इन परचेजेस अकाउंट क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय परचेजेस बुक ओवरकास्ट और अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 500। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल, सैलरी पेड ₹50,000 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू सैलरी अकाउंट। प्राशिता, इसकी रिकॉर्डिंग कौन सी बुक में हुई होगी? मैं भी सब सीटी बुक्स की क्लास में ली। ओके, प्रिशिता आप बताओ। द कैश बुक। कैश बुक में। ठीक है। और किस साइड पे? द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे बाय सैलरीज। ठीक है, बाय सैलरी अकाउंट। फ्रॉम देयर इट शुड हैव बीन पोस्टेड इन विच लेजर अकाउंट? सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट। विच साइड? डेबिट साइड। लेकिन वो पोस्टिंग नहीं हुई। ठीक है। तो अब क्या, कैसे रेक्टिफाई किया जाए उसे? सर हम सैलरी अकाउंट बना के कर सकते हैं इसे हाँ, उधर यस पोस्ट। यस। कैश तो क्रेडिट हो गया है क्योंकि पोस्टिंग में गलती हुई है। ठीक है। तो इसका मतलब कैश रिकॉर्डिंग में गलती तो नहीं हुई, कैश बुक में तो ठीक रिकॉर्ड हो गया, कैश तो क्रेडिट हो गया, लेकिन सैलरी डेबिट नहीं हुआ। सो इन सैलरी अकाउंट डेबिट साइड इन पर्टिकुलर्स राइट टू omission of posting and in the amount column write 50,000. Clear? यस सर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस ₹250 has been posted twice in refreshment account. इसकी रिकॉर्डिंग कहां पे हुई होगी? सर कैश बुक में। कैश बुक। विच साइड? द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। वहां पे हमने लिखा होगा बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस। वहां से पोस्टिंग जानी चाहिए थी कौन से अकाउंट में? द रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट साइड। वेरी गुड। अब एरर क्या हुआ है? एरर क्या हुआ है? इट हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस, मतलब रिफ्रेशमेंट अकाउंट में एक बार की जगह दो बार डेबिट हो गया है, तो ₹250 एक्स्ट्रा डेबिट हो गए हैं। क्या करेंगे अब, कैसे रेक्टिफाई करेंगे? क्रेडिट साइड क्रेडिट कर देंगे। एब्सोल्युटली राइट, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। ठीक है। ऑन क्रेडिट साइड इन पर्टिकुलर्स वी विल राइट बाय डबल पोस्टिंग एंड इन द अमाउंट वी विल राइट 250। तो जो एक एक्स्ट्रा 250 डेबिट हो गया था उसका इफेक्ट कैंसल हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस 250 has been posted in refreshment account as 520। तो क्या मिस्टेक हुई यहां पर? सर अमाउंट का आ गया। अमाउंट ज्यादा पोस्ट हो गया है ना रिफ्रेशमेंट में, किस साइड पर?
डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पर कितना ज्यादा अमाउंट पोस्ट हो गया है? 250 होना था, 520 हो गया। 270. 270 रुपीज ज्यादा डेबिट हो गए हैं। सो हाउ टू रेक्टिफाई? So we will write that amount on credit side. Absolutely right. Since refreshment account has been debited in excess, to nullify its effect on credit side, in particulars write by excess posting, and in the amount write 270. Clear? Yes, sir. सिंपल है ना? Yes, sir. तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो सिंपल लगेगा, इजी हो जाएगा। अब आते हैं हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। मींस टू साइडेड एरर्स, जिनका जो एरर होते हुए भी ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट मैच हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000, ये हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं ट्रांजैक्शन का। ठीक है, अब एरर क्या हुआ? पहला केस लेते हैं, इफ द एंट्री हैज बीन ओमिटेड, मतलब एंट्री हुई ही नहीं, फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000 की हमने रिकॉर्डिंग ही नहीं की, तो क्या करेंगे? और उसकी एंट्री बना देंगे। एंट्री बना देंगे। ये एंट्री कहां पर होनी चाहिए थी? जर्नल में नहीं, फर्नीचर परचेज फॉर कैश है, कैश बुक, कैश बुक में क्रेडिट होनी, साइड। हाँ कैश बुक में होनी चाहिए थी क्रेडिट साइड पे बाय फर्नीचर अकाउंट, लेकिन नहीं हुई, डजंट मैटर। अब ये ध्यान रखना है, रेक्टिफिकेशन के टाइम पे हम कैश बुक में नहीं करेंगे, हम जितनी भी ये रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करेंगे ये सारी जर्नल में करेंगे, चाहे कैश से रिलेटेड हो, चाहे क्रेडिट सेल से रिलेटेड हो, चाहे क्रेडिट परचेज से रिलेटेड हो, व्हाटएवर, all these rectification entries will be done in journal only, not in cash book, not in sales book, not in purchase book, and so on. Clear? Yes, sir. तो अब बताओ, अगर जर्नल में मतलब एंट्री नहीं हुई तो अब एंट्री कर देते हैं। जर्नल के हिसाब से इसकी क्या एंट्री बननी चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Account credit 20,000. यस, तो जर्नल में हम ये एंट्री कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000, और नरेशन में लिख देंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री ओमिटेड। क्या लिखेंगे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री ओमिटेड या रेक्टिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डिंग नॉट डन। क्लियर? Yes, sir. Second, if entry has been made with less amount, pass the entry with the difference amount. Suppose हमें क्वेश्चन में दिया जाता है कि इस ट्रांजैक्शन की एंट्री हो तो गई है, बट इट हैज बीन रिकॉर्डेड विद रुपीज 18,000, यानी फर्नीचर टू कैश 20,000 की जगह फर्नीचर टू कैश 18,000 हो गया है, तो अब क्या करें? अमाउंट 2,000 लेके फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। वही एंट्री रिपीट कर दो डिफरेंस वाले अमाउंट से। फर्नीचर में भी 2,000 कम है डेबिट, वो हो जाएंगे, कैश में क्रेडिट में 2,000 कम है, वो चले जाएंगे। सो सेम एंट्री शुड बी रिपीटेड विद द डिफरेंस अमाउंट। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। नरेशन में हम क्या लिखेंगे? rectification of less amount recorded. Repeat. Rectification of less amount Recorded. Yes, right. अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, if an entry has been made with excess amount, suppose ये फर्नीचर टू कैश वाली एंट्री हो गई 23,000 से, ठीक है, 22 कर देते हैं इसे, 22,000 से, तब क्या करेंगे? तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट विद 2,000। फर्नीचर में डेबिट हो गया है 22,000, यानी 2,000 ज्यादा डेबिट हो गया, तो अब 2,000 क्रेडिट करना है। इसी तरह से कैश में 2,000 ज्यादा क्रेडिट हो गया है, तो उसे डेबिट करना है। इसका मतलब एंट्री को रिवर्स कर दो,
विद द डिफरेंस। तो रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 2000। क्लियर? यस सर, इसकी नरेशन ये होगी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ मोर अमाउंट रिकॉर्डेड। Excess amount required. मोर अमाउंट रिकॉर्डेड या रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री डन विद एक्सेस अमाउंट। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ बाय मिस्टेक रिवर्स एंट्री हैज बीन पास्ड। एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू कैश 20,000, लेकिन गलती से एंट्री कर दी कैश टू फर्नीचर 20,000। अब क्या करें? फिर उसका डबल की रिवर्स एंट्री कर देंगे। एब्सोल्युटली राइट। फर्नीचर में डेबिट 20,000 जाना चाहिए था, लेकिन क्रेडिट हो गया 20,000। तो क्रेडिट का 20,000 नलीफाई करना है और डेबिट में 20,000 डालना भी है। तो अब हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे 40,000 से। इसी तरह से कैश में क्रेडिट में आना था 20,000, लेकिन कैश डेबिट हो गया 20,000 से। ठीक है? तो हम क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन में कैश क्रेडिट होना था 20,000 से, लेकिन डेबिट हो गया है, तो अब उसे डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। ठीक है? ये मैंने देखो यहाँ पे गलत लिखी हुई है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू एक्सेप्ट यस सर, ये ऑपोजिट होना चाहिए। हाँ, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, वी शुड एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स। ये मैंने गलत लिख दी यहाँ पर, इसको रेक्टिफाई कर देते हैं। ये होना चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट 40,000 कैश का टू कैश अकाउंट 40,000। अब ठीक है ना? अब उसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे 20,000। बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि कैश जो 20,000 एक्सेस मतलब गलत डेबिट हो गया था, उसका इफेक्ट चला जाएगा और क्रेडिट में 20 और आ गए। फर्नीचर में जो क्रेडिट हो गए थे 20, उसका इफेक्ट चला गया और 20 डेबिट में और आ गए। इज दिस क्लियर? यस सर। इन अदर केसेस, अब ये तो हो गए 4 केसेस सिंपल सिंपल जो थे कि भाई एंट्री की ही नहीं, या कम अमाउंट से कर दी, या ज्यादा अमाउंट से कर दी, या रिवर्स एंट्री कर दी। ठीक है? और इसके अलावा बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो बाकी केसेस में क्या करना है, आपको रफ में, आई एम रिपीटिंग, रफ में करेक्ट एंट्री लिखनी है और रॉन्ग एंट्री लिखनी है, कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी और रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है। फिर दोनों को कंपेयर करके आपको समझ में आएगा कि रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल लेते हैं, फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। इसकी एंट्री कौन सी बुक में आनी चाहिए थी? कैश बुक। कैश बुक में। अगर हम जर्नल की टर्म्स में बात करें तो फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। यस। तो आप रफ में लिख लो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 और उसके ऊपर लिख लो सी। सी मतलब करेक्ट एंट्री। फिर हो क्या गया है, हैज बीन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, किसकी जगह? फर्नीचर अकाउंट की प्लेस पर। फर्नीचर की जगह। ठीक है? ये अंडरस्टूड है कि जोन सा डेबिट होना था उसकी जगह ये डेबिट हो गया है। तो अब आप रफ में रॉन्ग एंट्री लिखोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। ठीक है? और उसके ऊपर लिख लेना डब्ल्यू, मतलब कि रॉन्ग। यहां तक समझ आया? यस सर। अब हमें सॉल्यूशन में सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री देनी है, ना करेक्ट एंट्री देनी है, ना रॉन्ग एंट्री देनी है। सॉल्यूशन में वी हैव टू राइट ओनली द रेक्टिफाइंग एंट्री। क्लियर? यस सर। तो कंपेयर करते हैं।
इन दोनों एंट्रीज को। इन दोनों एंट्रीज को देखें तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था और क्रेडिट ही हुआ है। 20,000 से क्रेडिट होना था और 20,000 से ही क्रेडिट हुआ है। तो इसका मतलब देयर इज नो मिस्टेक इन कैश अकाउंट। क्लियर? यस सर। तो जो सही है पहले उसे रूल आउट कर दो। दोनों एंट्रीज में कैश अकाउंट के आगे आप टिक लगा दो, मतलब ये तो ठीक है। अब देखते हैं क्या बचा। फर्नीचर अकाउंट शुड हैव बीन डेबिटेड बाय 20,000, बट एक्चुअली फर्नीचर अकाउंट में हुआ क्या है? परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया। व्हाट वाज माय क्वेश्चन? एक्चुअली फर्नीचर अकाउंट में हुआ क्या है? क्वेश्चन तो को कुछ ध्यान। भी नहीं। यस सर नथिंग हैज बीन एंटर्ड इन यस फर्नीचर अकाउंट। यस, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, सुनना होता है, फिर आंसर देना होता है। माय क्वेश्चन वाज फर्नीचर अकाउंट में क्या हुआ है, और आपने कहा परचेज अकाउंट में। लेकिन अब आपने ठीक बोला कि फर्नीचर अकाउंट में क्या हुआ, उसका ठीक आंसर है कुछ भी नहीं हुआ। फर्नीचर अकाउंट तो आया ही नहीं एक्चुअल एंट्री में। तो क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब हम क्या करें? तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और परचेजेस वेट अकाउंट वेट जो वेट डेबिट वेट 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 वेट, डोंट गेट सो एक्साइटेड। सिर्फ फर्नीचर अकाउंट में बताओ क्या कर देंगे? डेबिट। यस, यहाँ पे रुकते हैं अभी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था 20,000 से, लेकिन फर्नीचर अकाउंट में एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ, तो हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे 20,000 से। यहां तक क्लियर सबको? यस सर। अब आते हैं, अब बचा ये परचेज अकाउंट। ध्यान से सुनना और फिर आंसर देना। परचेज अकाउंट में होना क्या चाहिए था? सर कुछ भी नहीं। वेरी गुड, कुछ भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो क्या गया है? डेबिट। डेबिट हो गया है 20,000 से। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करें? सर इसे क्रेडिट कर देंगे। इसे क्रेडिट कर देंगे। एक्सीलेंट। तो दिस कंप्लीट्स आवर रेक्टिफाइंग एंट्री। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन गई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू परचेजेस अकाउंट 20,000। क्लियर? यस सर। और इसकी नरेशन में हम लिख देंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग अकाउंट डेबिटेड। क्लियर? यस सर। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना रेक्टिफाइंग एंट्री विदाउट राइटिंग एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन कि क्यों हुआ कैसे? यस, यू डू नॉट हैव टू राइट एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। सिर्फ जहां पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, वो भी 2 स्टेप से ज्यादा की कैलकुलेशन, वहां पे वर्किंग नोट्स दिखाने होंगे। अदरवाइज ये करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, एक्सप्लेनेशन आपको कुछ नहीं देनी। एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपकी शॉर्ट सी आ जाएगी नरेशन में, रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग अकाउंट डेबिटेड। ठीक है? फेयर में आपने जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, उसमें एंट्री लिखते जानी है। डेट अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो डेट कॉलम में आप जो एरर नंबर दिए होंगे आपको 1 2 3 4 5, डेट हेडिंग डेट ही रहेगी, लेकिन उसके अंदर आप सीरियल नंबर, वो एरर नंबर लिखते जाओगे जो जो आपको क्वेश्चन में दिए हैं। और पर्टिकुलर्स में आप एंट्री लिखते जाओगे, अमाउंट लिखते जाओगे, और नरेशन हमेशा आपकी स्टार्ट होगी रेक्टिफिकेशन ऑफ इन वर्ड्स के साथ। और फिर उसके आगे ब्रीफ में लिख दो मिस्टेक क्या थी, जैसे इस केस में रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट डेबिटेड। क्लियर? यस सर। एनी डाउट अप टू हियर एनीवन? नो सर। Okay, we'll stop over here for today. In the next class, we will do an illustration to rectify double-sided errors. जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, ऐसे कुछ एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए नेक्स्ट क्लास में हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है? Anyone having any doubt? No? एक्सक्यूज मी सर। Yes, बोलो। सर टेस्ट में क्वेश्चन था अनअर्न्ड इनकम, सर वो लाइबिलिटी क्यों है? अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड मतलब जो अभी ड्यू नहीं हुई, मतलब जो अभी एक्रू नहीं हुई। तो इसका मतलब एडवांस में मिल गई है। जब ड्यू नहीं हुई और मिल गई है
तो एडवांस में मिल गई है। अनअर्न्ड इनकम कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को, ठीक है। एडवांस में इनकम मिल गई है आपको, अभी उसके बदले में सर्विस देनी है, सो इट इज अ लायबिलिटी। ओके सर, सर वो मैंने एक्रूड इनकम ले ली इसलिए एसेट पिक कर उसमें दिया। कई बार इस तरह की कंफ्यूजन हो जाती है, कोई नहीं, अब आपको क्लियर हो गया, आगे के लिए ध्यान रहेगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। एनी अदर डाउट एनीवन? ओके, थैंक यू। सर